ही दिखाना, सड़क की तरीका है ये प्यार दिखाने का, जेब में ना कोड़ी फिर भी तेरे पे दीवाना, तू हाई फाई लेकिन मैं फोकड़ के वाईफाई पे बैठा हूँ, नाम तो बता, मैं डालूंगा डीएम, फिर एम से पीएम, करे बात साथ साथ, खाली घर रात रात रात, बहुत हार्ड, तू लटका के झटका के चलती है, भटका के ध्यान मेरा, तेरे इस चलने पे मैंने कुछ लिखा है, पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा, वो मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है, ये चल कोई गाय नहीं है, बस इतना ही बोलूंगा, दिखती है माशाल्लाह, चलती है इसमें तो राय नहीं है, क्या मामा बल्ले बोले कल्लू बन जाऊंगा, तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा, मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा, तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, बेबी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा, आइटम बताने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा। मुझे शैतान का साला गोलू 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 तो छपता हूँ मला सब कहे मुझे शैतान का साला वो बोले वाला क्या चीज है साला लोग बोले वाला क्या चीज है साला रब ने है वाला बोले बिटी मौसी खाला गोरे से गोरे का मुंह करता हूँ काला sorts of animals and plants that enables them to function and thrive, from huge ecosystems right down to the tiny cells that build you of water. Interestingly though, the older we get, the less amount of water we are. Newborns, for instance, are made up of about 75% water, while the average adult is about 60%. Then we have the elderly, which typically are made up of about 50% water. Maybe that is why older folks are known to have more of a dry sense of humour. But what does happen if we don't drink enough water? And what are some simple yet effective ways to help us drink the water we need? Well, our age, activity, body mass index and gender all have a role to play in how much water we need. However, the general rule of thumb is about 8 glasses of water for adults. You might think that is a lot of water to drink in a day, but thankfully you're not an elephant who drinks up to 200 litres a day. While on the other hand of the spectrum, we are certainly not tardigrades, which can survive several years without water. Giving up almost all the water in its body, the tardigrade simply curls up into a dry husk and it can stay in that state for decades, only reanimating when it comes into contact with water. Humans, on the other hand, can only last about 3 to 4 days without water before death occurs. And although those of you who are watching this video haven't gotten to that point yet, research does show that 75% of Americans are dehydrated, with places like Australia being up to 80%. You may be asking, well, why are we so dehydrated? And although the answer may be simple, it doesn't help that we use and lose about 1.5 to 2 litres of water a day through things like our urine, breath, sweat, and even small amounts through our poop. So if we don't replenish that water lost, our bodies begin to show signs that it is suffering. So what are some of the signs of dehydration? Well, sign number 1 is that your urine will become a dark yellow. This is because our kidneys, which filter waste, tell the body to retain water. Therefore, we have less water in our urine, which causes it to become darker and causes us to have fewer trips to the toilet. While on the other hand, keeping hydrated will help have a healthy urinary system and reduce the risk of kidney stones and diseases. The next sign of dehydration that you may experience is dry, flaky and even itchy skin. Skin, like other organs, needs plenty of water to function so that it can expel waste through sweat. Furthermore, water helps to moisturize your skin, keeping it clear, smooth and soft, while helping to reduce wrinkles and acne. Dry mouth and bad breath are another sign of dehydration, as you do not produce as much saliva.
The reduced cleaning action of the saliva allows bacteria to grow, causing your breath to have a bad smell. A fourth sign is dry eyes, as they are an organ that needs water to keep it lubricated, and hence the dryness may be a result of your body not having enough water. Sign number 5 is sickness. Those who don't drink enough water become more sick and also stay sick for longer. Drinking plenty of water helps fight against flu, cancer, and other ailments like heart attacks, as water dissolves essential vitamins and nutrients from food and delivers them to our body's cells. Headaches, dizziness, cloudy mind, and losing concentration can all be a direct result of being dehydrated, but more so because of our brains being dehydrated. Since our brains are about 75% water, drinking enough water helps you to think, focus, concentrate, and be more alert. It may even help that headache you've been getting lately. Muscle and joint pain is another sign of dehydration, as water helps to keep joints lubricated and muscles more elastic. The 8th sign you may experience is lethargicness and irritation. Dehydration can cause various body functions to slow down, leaving you feeling sluggish, tired, and irritable. That is why a glass of water can be a great pick-me-up. Feeling hungry during the day can also be a sign of dehydration, as we sometimes confuse our thirst with hunger. Simply having a glass or two of water when you do feel a bit hungry may take away that feeling and help you to become rehydrated. So did any of those symptoms relate to you? Well, here are 4 tips to help you keep hydrated. Number 1, keep a water bottle near you. You may have heard of the saying, out of sight and out of mind. Well, this helps to counteract that by placing the water inside and therefore in mind. Number 2, eating more fruits and vegetables. Eating more fruits and vegetables is a great way to keep hydrated. Although it won't work as fast as a glass of water, studies do show that those who have a high amount of fruit and veg have a higher hydration status. This is no surprise, as most vegetables and fruit are almost all water. Just having 11 cucumbers will actually give you your daily recommendation of 8 glasses of water. Number 3, add salt to your water. Just adding a pinch of salt to your glass of water can increase your hydration, as water and salt are 2 important elements in keeping hydrated. Salt is needed to help water move across the cell walls into the cell so that it can function properly. Thus, adding salt will help your cells absorb more water. But make sure you use Celtic, Himalayan, or sea salt, as the nutritional value of these salts are far higher than our typical table salt. Tip number 4, setting reminders. Whether an alarm, email, notification, or sticky note, using some reminder throughout the day to drink water is a simple yet effective way that it will help you set a good drinking habit. So did you learn something new? Well, tell me in the comments below what you did learn or something that helps you keep hydrated. And if you enjoyed this video, don't forget to subscribe, and remember, keep hydrated. Water is virtually everywhere, from soil moisture and ice caps to the cells inside our own bodies. Depending on factors like location, fat index, age, and sex, the average human is between 55 and 60% water. At birth, human babies are even wetter. Being 75% water, they are swimmingly similar to fish. But their water composition drops to 65% by their first birthday. So what role does water play in our bodies? And how much do we actually need to drink to stay healthy? The H2O in our bodies works to cushion and lubricate joints, regulate temperature, and to nourish the brain and spinal cord. Water isn't only in our blood. An adult's brain and heart are almost 3/4 water. That's roughly equivalent to the amount of moisture in a banana. Lungs are more similar to an apple at 83%, and even seemingly dry human bones are 31% water. If we are essentially made of water and surrounded by water, why do we still need to drink so much? Well, each day we lose 2 to 3 liters through our sweat, urine, and bowel movements, and even just from breathing. While these functions are essential to our survival, we need to compensate for the fluid loss. Maintaining a balanced water level is essential to avoid dehydration or overhydration, both of which can have devastating effects on overall health. At first detection of low water levels, sensory receptors in the brain's hypothalamus signal the release of antidiuretic hormone. When it reaches the kidneys, it creates aquaporins.
special channels that enable blood to absorb and retain more water, leading to concentrated dark urine. Increased dehydration can cause notable drops in energy, mood, skin moisture, and blood pressure, as well as signs of cognitive impairment. A dehydrated brain works harder to accomplish the same amount as a normal brain, and it even temporarily shrinks because of its lack of water. Overhydration, or hyponatremia, is usually caused by overconsumption of water in a short amount of time. Athletes are often the victims of overhydration because of complications in regulating water levels in extreme physical conditions. Whereas the dehydrated brain amps up the production of antidiuretic hormone, the overhydrated brain slows or even stops releasing it into the blood. Sodium electrolytes in the body become diluted, causing cells to swell. In severe cases, the kidneys can't keep up with the resulting volumes of dilute urine. Water intoxication then occurs, possibly causing headache, vomiting, and in rare instances, seizures or death. But that's a pretty extreme situation. On a normal day-to-day basis, maintaining a well-hydrated system is easy to manage for those of us fortunate enough to have access to clean drinking water. For a long time, conventional wisdom said that we should drink 8 glasses a day. That estimate has since been fine-tuned. Now, the consensus is that the amount of water we need to imbibe depends largely on our weight and environment. The recommended daily intake varies from between 2.5 to 3.7 liters of water for men and about 2 to 2.7 liters for women, a range that is pushed up or down if we are healthy, active, old, or overheating. While water is the healthiest hydrator, other beverages, even those with caffeine like coffee or tea, replenish fluids as well. And water within food makes up about 1/5 of our daily H2O intake. Fruits and vegetables like strawberries, cucumbers, and even broccoli are over 90% water and can supplement liquid intake while providing valuable nutrients and fiber. Drinking well might also have various long-term benefits. Studies have shown that optimal hydration can lower the chance of stroke, help manage diabetes, and potentially reduce the risk of certain types of cancer. No matter what, getting the right amount of liquid makes a world of difference in how you'll feel, think, and function day to day. Good evening, everybody. Welcome to all of you in today's amazing workshop. It's diabetes workshop, right? आप सभी लोगों का आज के वर्कशॉप के अंदर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज का वर्कशॉप जो है वो बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है और बहुत सारी चीजें आज यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि डायबिटीज जो है वो वर्ल्ड वाइड इतना सारा फैल रहा है, तो उसका रीजन क्या है, और क्यों होता है डायबिटीज। वो सारी चीजें कुछ ना कुछ ऐसी होगी जो शायद हमें नहीं पता होगी, और उसके बारे में हम डेफिनेटली थोड़ा बहुत ऐसा होगा तो डीप में जाएंगे। और यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोग होंगे हमारे साथ जिनको कुछ ना कुछ मन में सवालात भी रहेंगे, तो उनके साथ भी डेफिनेटली उनके क्वेश्चंस का भी हम यहाँ पर आंसर्स ट्राई करेंगे कि दे पाए, राइट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज है, उनको अभी करंट सिचुएशन में डायबिटीज है और कुछ ना कुछ उनकी दवाइयाँ गोलियां वगैरह चल रही है। तो क्या आप अपना हैंड रेज कर सकते हो या फिर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं कि आवाज नहीं आवतो। सर मेरी आवाज आ रही है कंप्यूटर टीम? अगर आप यहाँ पर हो तो मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि चैट बॉक्स में केशव लाल जी लिख रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। मे आई लाउड एंड क्लियर? ओके, यस, लाउड एंड क्लियर, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोगों के हैंड रेज आने की शुरुआत हुई और चैट बॉक्स में भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि वो डायबिटिक है। जितने लोग डायबिटिक थे या है अभी डायबिटीज जिनको है ना, वो सारे लोग या चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि अभी आप डायबिटिक हो और आपके। यस, आई एम डॉक्टर रोनित नाग, यस, टाइप 1 डायबिटीज। ग्रेट रोनित जी,
और कोई या बहुत सारे लोग यहाँ पर चैट बॉक्स में भी हैं और लिख रहे हैं कि टाइप 1 डायबिटिक है, टाइप 2 डायबिटिक, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं 7 ईयर्स से है, 42 की एज है। यस, आप डेफिनेटली अपना आप डायबिटीज है आपको, तो आप यहाँ पर चैट बॉक्स में लिखते रहिए ताकि हमें भी पता चले कि मैं किन किन क्राउड के साथ बातचीत कर रहा हूँ और मुझे क्या डिलीवर करना है। ठीक है। दूसरी चीज, आप लोगों के दिमाग में भी कोई ना कोई सवालात आएंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिमाग में रहेंगे, है ना। तो वो भी आपको यहाँ पर डेफिनेटली चैट बॉक्स में लिखना है। और साथ साथ में मैं अपना जो भी सेशंस अभी ये कंडक्ट करूंगा, तो उसके दौरान वो भी आपके आंसर्स मिल जाए, ऐसा मैं ट्राई करूंगा। हमारा आशय, हमारा पर्पस एक ही है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग जो है वो डायबिटीज की वजह से जो भी तकलीफें हो रही है उसमें उनको बेनिफिट्स मिले। और डेफिनेटली ऐसी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ से पास ऑन करूंगा, बताऊंगा, आप सबके साथ शेयर भी करूंगा कि जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर हम गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता है और हमें दिक्कतें ज्यादा से ज्यादा हम महसूस कर रहे हैं, राइट। और हमारे साथ 600 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं अभी भी। और आपके फैमिली में अभी भी कोई ऐसा है जो अभी तक जुड़ा नहीं है और उनको डायबिटीज है या कुछ हेल्थ के बारे में या डायबिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उनके फैमिली में कोई भी है, तो डेफिनेटली आप उनको हमारा जो भी आपके 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 पास जो भी लिंक आई हुई है वो लिंक आप उन तक पहुंचा सकते हो। और डेफिनेटली उनको भी बताइए कि अभी सेशन लाइव हो चुका है और उनको भी बताइए कि थोड़ी ही देर में इंफॉर्मेशन मिलने की शुरुआत होने वाली है। और ऐसी इंफॉर्मेशन जो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपकी लाइफ को टर्न आउट करने के लिए इनफ रहेगी। ठीक है। यहाँ से मैं आपको एक बड़ा प्रॉमिस भी देना चाहता हूँ कि आज का सेशन और कल का सेशन, 2 दिन का हमारा ये अमेजिंग सेशन रहने वाला है। और ये 2 दिन का सेशन अगर आपने अच्छे से सुना और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, तो आई एम श्योर कि आपको बहुत सारा बेनिफिट जो है वो आपकी हेल्थ में मिलने वाला है। डेफिनेटली 110% बहुत सारा बेनिफिट जो है आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यस, Oppo A7 लिख रहा है, तो आप यहाँ पर बने रहिएगा। इसीलिए यहाँ पर 2 दिन का वर्कशॉप रखा हुआ है पूरा कि आपको कंप्लीट 110% बेनिफिट माहिती इंफॉर्मेशन जो है हमारी ओर से मिलेगी। और वही अगर आपने उसका इम्प्लीमेंट किया तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट जो है वो मिलना ही मिलना है। बहुत सारे लोग हमारी एक पीआरएम फैमिली है ना, ये फैमिली जो है ये हेल्प करती है लोगों को उनकी हेल्थ में बदलाव लाने की। ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से पास ऑन करते हैं, उनको बताते हैं, उनकी लाइफस्टाइल में बदलाव होता है जिसकी वजह से उनकी हेल्थ में 110% बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। ठीक है। तो शुरुआत करेंगे। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मेरा जो इंट्रोडक्शन है मैं शुरुआत करूंगा कि आज का जो सेशन है वो डायबिटीज का है। और बाय प्रोफेशन मैं फार्मासिस्ट हूँ। मैं दवाइयाँ बनाती जो कंपनी थी उसमें मैं जॉब करता था। और दवाइयों का नॉलेज तो डेफिनेटली है मेरे पास। और मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगा कि डायबिटीज जो है आप चाहो तो अच्छा उसमें बेनिफिट पा सकते हो। किस तरीके से, वो आज के सेशन में आपको पूरा अटेंड करना है और वहां पर आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, राइट। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर हैंड रेस भी किया हुआ है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मुझे अच्छा लगा कि आप मेरे साथ हो और ऐसे ही कुछ ना कुछ बातें हमारे साथ होती रहेगी। और डेफिनेटली मैं आप सबका भी सपोर्ट चाहूंगा, तो मैं यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करूँ वो आप तक पूरी पहुंच पाए, राइट। तो यस, मेरा नाम चिंतन ठक्कर है और बाय प्रोफेशन में फार्मासिस्ट हूँ। और साथ साथ में हम ASN सर्टिफाइड है, फार्मेसी का लाइसेंस भी आया हुआ है। और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन से भी सर्टिफाइड कोच के तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी तरीके से वो जो सारा नॉलेज हमें मिला जिसकी वजह से हम आज लोगों को गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपना नॉर्मल लाइफ जो है वो डेफिनेटली 110% जी सकते हो। ठीक है। यहाँ से सबसे पहला मैं आपको एक मेरी ओर से एक बड़ा प्रॉमिस देना चाहूंगा कि मैं आपको एक बेस्ट रास्ता यहाँ से बताने वाला हूँ। एक ऐसा रास्ता आपको शो करने वाला हूँ कि जिसका इस्तेमाल करके आप अपना नॉर्मल मील और हार्ड एक्सरसाइज
मिल्क को स्किप किए बिना और हार्ड एक्सरसाइज किए बिना ही आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में, बैलेंस में रख सकते हो, राइट। तो ऐसा ऐसा रास्ता आज आपको पता चलने वाला है पूरे सेशन के दौरान, कि जिसकी वजह से आप डेफिनेटली अपने जो अपना शुगर है उसको कंट्रोल में कर सकते हो। लेकिन बहुत सारी बार ऐसा होता है कि ये नॉलेज जो है ना वो हमारे पास नहीं होता, है ना, है ना। कितने लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज आया उससे पहले डायबिटीज के बारे में पता था? कोई है ऐसा जो डायबिटीज आया उससे पहले डायबिटीज के बारे में कोई कुछ कुछ जानता था? ऐसा कोई इंफॉर्मेशन थी? ऐसा कुछ किसी के पास था? डेफिनेटली नॉट, है ना। जब हमें कुछ भी दिक्कतें होती है तब जाके हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दिखाते हैं और फिर उनकी गोलियां वगैरह लेने की शुरुआत कर दे। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो डायबिटिक है लेकिन उनके पास इनफ नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। तो ये भी मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं डायबिटिक है लेकिन डायबिटीज आता कैसे है, डायबिटीज क्यों होता है, ये पता नहीं है। कितने लोग ऐसे? कैन यू रेज योर हैंड, या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि यस डायबिटीज तो मुझे 5 साल से है लेकिन पता नहीं है वो कैसे आया। डायबिटीज तो है लेकिन पता नहीं उसमें क्या खाना। डायबिटीज तो है लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं कैसी लाइफ जीऊं। डायबिटीज तो है लेकिन मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए उसको नॉर्मल लेवल में रखने के, राइट। ऐसे बहुत सारे सवालात होते हैं हमारे जहन के अंदर, लेकिन हम कभी भी उसको खोजने का ट्राई नहीं किया होता है, सॉरी। और हम ऐसे ही नॉर्मल लाइफ जीते हैं। डॉक्टर जो भी इंफॉर्मेशन सलाह देते हैं उसके हिसाब से खाने पीने में भी ख्याल रखते हैं और अपने हिसाब से दवाइयों का भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है। तो हमारा ऐसा प्रयास रहेगा, हमारा ऐसा कोशिश रहेगा कि आपके तक ज्यादा से ज्यादा और ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए जिसकी वजह से आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सको, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन नहीं होती जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अ, 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 बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। जैसे सबसे पहला मीथ जो सब में रहता है वो कौन सा रहता है? तो डायबिटिक जो पेशेंट रहता है उनको ऐसा लगता है कि हमने शुगर बहुत सारी खाई ना जिसकी वजह से मुझे डायबिटीज आया, है ना। सबसे पहला मीथ क्या रहता है? सबसे पहला मीथ कि मैंने शुगर बहुत ज्यादा खाई, अथवा या तो फिर मैंने शुगर शुगर का इंटेक मेरा ज्यादा है जिसकी वजह से मुझे डायबिटीज आया या मुझे डायबिटीज हुई, राइट। तो डेफिनेटली ये सही बात नहीं है, इट्स अ मिथ। तो व्हाट इज फैक्ट? फैक्ट क्या है? तो आप सबको जान के ताजुब होगा कि शुगर खाने से डायबिटीज नहीं होती, समझिएगा। शुगर खाने से डेफिनेटली डायबिटीज नहीं होता, लेकिन शुगर ज्यादा अमाउंट में अगर हमने लिया और हमारी बॉडी में इंसुलिन इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हुआ तो डेफिनेटली हमें डायबिटीज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डायबिटिक हमसे भी ज्यादा शुगर का इंटेक करते हैं, राइट। और फिर भी उनको डायबिटीज नहीं है, लेकिन हमने शुगर अवॉइड कर दिया, हम शुगर नहीं खाते, फिर भी हमारा शुगर लेवल हाई रहता है। कितने लोग ऐसे हैं? हर्षा पटेल जी लिख रहे हैं आवाज नहीं आओ, तो मेरी आवाज सबको आ रही है आई थिंक। तो हर्षा जी को मैसेज कीजिएगा कि वो किस तरीके से अपना ऑडियो अच्छे से कनेक्ट कर पाए, राइट। तो कितने लोग मेरे साथ एग्री है ना, कि मैं शुगर नहीं खाता लेकिन मेरा पड़ोसी या मेरा फ्रेंड्स वगैरह शुगर बहुत ज्यादा खाते फिर भी उनको शुगर नहीं। हमने ऐसे बहुत सारे लोग लिखे देखे होंगे। अगर आप एग्री हो तो चैट बॉक्स में क्या लिखना है? ए, एग्री। ओके, ए लिखना है आपको चैट बॉक्स में। अगर एग्री हो तो ए लिख सकते हो। जितने भी लोग मेरे साथ अभी भी मौजूद है, हमारा थोड़ा आज का इंटरेक्शन के थ्रू ही बातचीत करेंगे, हम सब लोगों को अच्छा भी लगेगा और डेफिनेटली मुझे लगेगा कि मैं लाइव पब्लिक के साथ मतलब इंटरेक्शन कर रहा हूँ, है ना। सारे लोग जो है मेरे साथ एक्टिव है ना। तो आपको चैट बॉक्स में बने रहना है और मुझे आंसर देते रहना है सर। तो ये एक मीथ है जो जिसके बारे में डिटेल में हमें पता नहीं होता, है ना। शुगर ज्यादा खाने से या फिर शुगर लेने से 110% हमें डायबिटीज नहीं होता, लेकिन वही शुगर अगर हम बैलेंस नहीं करते, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो इंसुलिन रहता है वो इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होता जिसकी वजह से शुगर कन्वर्ट नहीं होता और हमें डायबिटीज आता है, राइट। तो ये सबसे पहला मीथ है कि जहां पर हमें ये लगता है सबसे बड़ा, ठीक है। सेकंड, जिनको भी डायबिटीज है उनको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने, राइट। ये एक दूसरा मीथ है जहां पर रोटी राइस ये जिसमें से कार्ब्स मिलते हैं, ये कार्ब्स वाली चीजें जो है
डॉक्टर बंद करवा देते हैं, या अब खुद ही शायद बंद कर देते हैं, हम खुद ही शायद बंद कर देते हैं, राइट। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दिया था? अगर आप एग्री हो तो ए लिखना है ना चैट बॉक्स में, हम एक पर ज्यादा भार रखेंगे। अगर डिसएग्री हो तो डी भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमें पता नहीं होता, और हम यही मान्यता बना के बैठते हैं कि मुझे अगर डायबिटीज है तो मुझे कार्ब्स नहीं लेने हैं, मेरा कार्ब्स कम कर देना है, मुझे कार्ब कम खाना है, नहीं खाना है, बंद कर देते हैं, स्विच ओवर कर देते हैं कुछ ना कुछ अलग तरीके से, ठीक है। लेकिन व्हाट इज द फैक्ट? फैक्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स के टू टाइप्स रहते हैं, एक सिंपल कार्ब्स रहते हैं एंड सेकंड वन इज हमारा कॉम्प्लेक्स कार्ब रहते हैं। तो जो सिंपल कार्ब्स है उसको हमें डेफिनेटली अवॉइड करना है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है जिसके बारे में आने वाले सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, व्हाट इज सिंपल कार्ब्स एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। ओके, तो वो समझने वाली चीज है कि हमें सिंपल कार्ब्स को अवॉइड करना है, ना कि कॉम्प्लेक्स कार्ब, है ना। हमें स्विच ओवर करना है कॉम्प्लेक्स कार्ब के ऊपर। ओके, तो ये समझने की जरूरत है, बिकॉज की सिंपल कार्ब्स जो है हमें फ्रूट्स वगैरह में से, कार्बोहाइड्रेट सभी जगह से मिलता है ना, रोटी सब्जी में से मिलता है, हमारे फ्रूट्स वगैरह में से मिलता है, सभी जगह से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। तो लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है उसको अवॉइड नहीं करना है, सिर्फ सिंपल कार्ब्स को हमें यहाँ पर अवॉइड करना है। ओके, थर्ड मिथ ये रहता है कि डायबिटिक पीपल कैन नेवर हैव अ राइस, उनको कभी भी राइस नहीं खानी चाहिए। ये भी उनमें डेफिनेटली मिथ्स है डायबिटिक पेशेंट के अंदर। ज्यादा राइस खाएंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, लेकिन राइस में भी ये रहता है ना। तो जितने भी लोग एग्री है, डिसएग्री वाले लोग भी रहेंगे हमारे साथ, जो ये एग्री नहीं करेंगे यस डायबिटिक पेशेंट जो है वो राइस नहीं खा सकते, तो डेफिनेटली तो उसमें भी एक मीथ है ना, ये मीथ है। तो व्हाट इज ट्रूथ मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अगर आप भी ऐसा मानते थे तो आपको ए लिखना है। अगर आपको भी ऐसा ही ख्याल था कि इस डायबिटिक पेशेंट को राइस नहीं खाने चाहिए, आप ऐसा बिलीव कर रहे थे, आपको भी यही इंफॉर्मेशन थी, तो आपको चैट बॉक्स में डेफिनेटली ये लिखना है कि डायबिटिक पेशेंट है उसको राइस दे। राइस में भी टाइप्स रहते हैं ना, जैसे राइस का सेशन आज हमारा रहता है तो उसमें बताया जाता है कि राइस में भी एक पॉलिश्ड राइस रहते हैं, ठीक है, और दूसरे रहते हैं नॉन पॉलिश जिस पर पॉलिश नहीं किया जाता, ठीक है, ऐसा राइस रहता है। दूसरे ब्राउन राइस रहते हैं। तो जो पॉलिश राइस रहते हैं जो जो सिंपल कार्ब्स बताया जाता है, जो पॉलिश राइस रहते हैं, राइट। तो ज्यादातर इसका इंटेक ज्यादा होता है, इसी वजह से राइस जो है वो मना करते हैं कि राइस नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो नॉन पॉलिश राइस है या फिर रफ पॉलिश राइस है उसका इंटेक आप कर सकते हो, लेकिन डेफिनेटली वहां पर भी क्वांटिटी जो है आपको कम अमाउंट लेना है, ठीक है। ये आपको ख्याल में रखना है कि उसकी क्वांटिटी जो है ना वो मैटर करेगी, ठीक है। तो ये भी एक मीथ है, मतलब पॉलिश राइस जो है वो नहीं लेना, ब्राउन राइस या नॉन पॉलिश राइस जो है आप उसका वहां पर इंटेक कर सकते हो विथ क्वांटिटी और उसके हिसाब से, ठीक है। ओके, स्वीट्स, यहाँ पर भी एक ऐसा ही है कि डायबिटिक पेशेंट है तो उनको कभी भी फॉर एवर लाइफ में कभी भी स्वीट्स एंड डेजर्ट्स को नहीं लेना है ना। हम अगर कोई किसी डायबिटीज पेशेंट को हमने बताया कि ये स्वीट का है तो वो मना कर देंगे कि नहीं मुझे डायबिटीज है तो मैं ये स्वीट एंड शुगर नहीं लूंगा। तो यहाँ पर भी वो सेम लॉजिक काम करता है कि जो हमारे बॉडी में इंसुलिन कम अमाउंट में बनता है जिसकी वजह से ये शुगर जो है वो शूटअप होता है। स्वीट और डेजर्ट्स या फिर वो हम लंबे अरसे तक बहुत ज्यादा खाएंगे तो डायबिटीज होता है, ऐसा हम मानते हैं। तो ऐसा नहीं है, डायबिटीज हमारे बॉडी में इंसुलिन जो रहता है उसकी वजह से होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप, आई डिडंट टुक स्वीट, तुषार देसाई ने लिखा कि वो स्वीट नहीं लेते, यस। टाइप 1 शुगर कैन रिवर्स, ओके प्रफुल्ल भाई, उस पर भी हम बातचीत करेंगे आज, टाइप 1 के बारे में भी बातचीत करने वाले हैं। वेट लॉस होता है बहुत मेरा, यस, डायबिटीज में वेट लॉस भी रहता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। ओके ग्रेट, टेकिंग वेरी लाइट, यस, हम बहुत ही लाइट लेते हैं इसको, है ना कि यस। फिर दूसरा एक मीथ है कि शुगर फ्री, जो डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए जो शुगर फ्री है वो हेल्दी है। कितने लोग ऐसे मानते हैं, या वो लोग लेते हैं कि अगर चाय पिया तो शुगर फ्री वाला लिया, है ना। ओप्पो करके है जिनका ऑडियो अभी कनेक्ट नहीं हुआ है तो प्लीज उनको
हेल्प कीजिएगा ऑडियो कनेक्ट करने के लिए। ओके, हाँ देखो पंकज जी का भी यही सवाल है कि शुगर फ्री प्रोडक्ट जो है, हम ऐसा मानते हैं कि डायबिटिक जो पेशेंट है उनके लिए शुगर फ्री हेल्दी है। और बहुत सारे लोग, हम जब चाय भी लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो वहां पर शुगर फ्री का इंटेक जो है वो बढ़ाते हैं। यस, तो शुगर फ्री जो है उसमें कहीं ना कहीं शुगर तो रहती ही है, वो केमिकली डिजाइन हुई जो शुगर आती है वो होती है। ठीक है, तो शुगर फ्री मतलब जीरो कैलोरी जो शुगर आती है, जो फ्रूट्स वगैरह में से मिलती है, डेफिनेटली वो हेल्दी रहती है। लेकिन केमिकली बेस्ड जो शुगर फ्री रहता है वो डेफिनेटली अनहेल्दी है। और यही सारे मिथ की वजह से डे बाय डे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो डायबिटिक पेशेंट्स है, मतलब डायबिटीज के डिजीज जो है, डायबिटीज के लोग हैं, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी देखा जाए तो 387 मिलियन वर्ल्ड वाइड ऐसे लोग हैं जो डायबिटिक है। और ऐसा WHO ने सर्वे किया हुआ है कि 2035 तक ये 205 प्लस होगा। मतलब कितना होगा? 592 जितना डायबिटिक पेशेंट होने की एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेड इंक्रीज टू 205 मिलियन एक्सपेक्टेड है, इतने बढ़ने वाले हैं। ये नॉलेज नहीं है इसीलिए, और इसीलिए हमने ये एक मिशन के तौर पर शुरू किया है जहां पर हम सब लोगों को गाइड करते हैं ताकि ये नंबर्स को हम हो सके उतना हम कम कर सके। और उसमें डेफिनेटली आप लोगों का सहकार, आप लोगों के सपोर्ट की भी हमें जरूरत रहेगी कि ये जो आपके पास लिंक आई हुई है उसको आप हो सके उतने लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम ये इंफॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंचा सके जिनको डायबिटीज है या उनके परिवार में है या फिर उनके कोई रिलेटिव्स में है। और वो यही इंफॉर्मेशन की हेल्प की वजह से डेफिनेटली ये नंबर्स को हम डेफिनेटली मिल के हम जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, 13 વર્ષની દીકરી છે ને अचानक शुगर આવી છે। ओके ओप्पो, डेफिनेटली आप हमारे साथ रहिएगा, है ना। आपका जो है मैं देखता जाता हूँ, नेचुरल शुगर इज गुड। ओके ग्रेट सर, मेरी ओके। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, धारा जी ने भी लिखा है कि उनके फैमिली में है तो उनको क्या क्या टेक केयर करना चाहिए। तो ये भी याद, यहाँ से आपको पता चलेगा कि व्हाट आपको केयर आपको करनी चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पर आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं। अब करंट सिनारियो अभी इंडिया की मैं बात करूं तो करंट डेटा के हिसाब से मोर देन 7 CR लोग ऐसे हैं जो डायबिटिक है 7 CR। और 230 मतलब विद इन 6 इयर्स ये 100 बिलियन तक पहुंचने वाला है। 100 बिलियन तक पहुंचने वाला है। एवरी 6 पीपल देर इज वन एडल्ट इज डायबिटिक। 6 में से एक बंदा ऐसा है जो डायबिटिक है। ठीक है, ये करंट सिचुएशन है इंडिया की, है ना। और आने वाले समय में 2030 मतलब विद इन नेक्स्ट 6 इयर्स ये नंबर्स बहुत सारे बढ़ने वाले, बिकॉज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनको पता नहीं है कि किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, और उसी के लिए हम ये हमारी TRM फैमिली जो है वो डे बाय डे उस पर फोकस कर रही है, काम कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है कि व्हाट शुड यू हैव टू टेक केयर। ओके, आपको क्या टेक केयर करनी चाहिए। ओके, ये सारी बात थी हमारे डायबिटिक पेशेंटों की। डायबिटिक, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक है, डायबिटीज नहीं है, उससे पहले का स्टेज उनके पास है। राइट, 3 में से एक एडल्ट ऐसा है जो प्री डायबिटिक है, और 10 में से 9, उसमें से 10 में से 9 लोगों को पता नहीं होता कि वो प्री डायबिटिक है। ये एक सर्वे हुआ था जिसके तहत ये सारे नंबर्स जो है हमारे सामने आए। तो ये एक ऐसा चीज है जहां हमें अवेयर होना है और लोगों को अवेयर करना है कि डेफिनेटली आप यहाँ से रिवर्स और अपनी हेल्थ का टेक केयर कर सकते हो। और डायबिटीज में टॉप 5 जो कंट्रीज है जिसके अंदर इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पर आ रहा है। इट इज नॉट प्राउड, लेकिन ये ऐसा समझने वाली चीज है कि यहाँ से हमें अवेयर, जागृत होने की जरूरत है। ठीक है, 55% मैन एंड 65% वीमेन ऐसी है जो करंटली डायबिटिक है। ठीक है, और इसी के चलते हर एक का एनुअल
जो कॉस्ट देखा जाए तो दवाइयों का कॉस्ट और अदर कॉस्ट जो रहता है वो मोर देन 40,000 से ज्यादा जो है वो एनुअल कॉस्ट उनका रहता है डायबिटिक पेशेंट का। ठीक है, तो ये समझने वाली चीज है कि एक्चुअली में डायबिटीज है क्या। हम यहां से अब शुरुआत करते हैं। अर्पिता ठक्कर जी ने हैंड रेस किया है। आपका जो भी सवाल, उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है तो उनको हेल्प कीजिएगा अर्पिता ठक्कर जी को, ये ताकि वो हमारा सेशन जो है वो अच्छे से सुन पाए। ओके, तो सबसे पहला हमें समझने वाली चीज ये है कि डायबिटीज क्या है। व्हाट इज डायबिटीज, हमें पता ही नहीं होता कि डायबिटीज क्या है। तो डायबिटीज जो है ना वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जहां पर हमारी बॉडी जो है वो इनफ अमाउंट में इंसुलिन जनरेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो ब्लड में ज्यादा जाता है। राइट, इंसुलिन प्रोड्यूस करने की हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी है वो इनफ नहीं है, वो इनफ अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो हमारे बॉडी में बढ़ता है। तो अब समझने वाली चीज है कि व्हाट इज इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है एक हार्मोन है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है सबको। इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और हमारे ग्लूकोज को डाइजेस्ट करके उसको ब्लड 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 के अंदर जो शुगर रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये इंसुलिन जो है वो हमें हेल्प करता है। और ये इंसुलिन जो है वो पेनक्रियास से रिलीज होता है और पेनक्रियास में उसका मेन फंक्शन जो है हेल्दी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना, मतलब ब्लड शुगर लेवल जो है उसको कंट्रोल करना, ये इंसुलिन का काम रहता है। ओके, ग्रेट। तो यहां पर एक पिक्चर भी मैंने दिखाई हुई है। तो इंसुलिन इज अ हार्मोन, ये एक हार्मोन है जो पेनक्रियास में प्रोड्यूस होता है। और पेनक्रियास के अंदर दो टाइप ऑफ सेल रहते हैं, एक बीटा सेल्स जो यहाँ पर बताया है बीटा सेल्स रहते हैं और दूसरे रहते हैं अल्फा सेल। अल्फा सेल, ठीक है। तो बीटा सेल्स क्या करता है, बीटा सेल्स एक इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से जो ब्लड शुगर लेवल जो ब्लड में रहता है, ठीक है, शुगर लेवल जो ब्लड में रहता है उसको डिक्रीज करने के लिए ये इंसुलिन हमें हेल्प करता है। दूसरा रहता है अल्फा सेल्स। ये अल्फा सेल्स क्या क्या करता है, ये ग्लूकागोन प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज ग्लूकागोन, इट्स आल्सो वन काइंड ऑफ हार्मोन इन अवर बॉडी। अपने बॉडी में एक हार्मोन ही है ग्लूकागोन, और वो क्या करता है हमारे ब्लड शुगर को बढ़ाता है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ाता है। वाई, ये इसकी जरूरत क्या होती है। तो एक चीज समझनी है कि जब हमारे पीछे या फिर हमें ऐसी एनर्जी की जरूरत होती है, ऐसी कंडीशन हमारे बॉडी की होती है जहां पर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तब ये रिलीज होता है, क्योंकि शुगर में से ही हमें एनर्जी मिलती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि आप भूखे पेट चल रहे हो और आपके पीछे कोई कुत्ता दौड़ रहा, कुत्ता आ रहा है भौंकता भौंकता, तो अगर आप में एनर्जी पावर बहुत कम है, आप फीवर में हो, फिर भी आप इतना भागोगे और सामने वाली दीवार को क्रॉस कर जाओगे। तो ये एनर्जी कहां से प्रोड्यूस हुई सडनली, बिकॉज ऑफ अल्फा सेल्स की वो परिस्थिति, मतलब जो सिचुएशन खड़ी होती है वहां पर हमारे बॉडी में ग्लूकागोन प्रोड्यूस करेगा और वही ग्लूकागोन हमारे बॉडी में हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज करेगा और वही शुगर जो है हमारे बॉडी में एनर्जी के तौर पर आगे बढ़े। ठीक है, ओके, ग्रेट। तो ये हो गया डायबिटीज में अल्फा सेल बीटा सेल जो पेनक्रियास के थ्रू काम करता है। ओके, ग्रेट। तो यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो है जिसके थ्रू हम ये भी समझेंगे कि ये एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है और साथ साथ में डायबिटीज क्यों होता है, रीजन ऑफ डायबिटीज, वो भी हम धीरे धीरे करके समझते जाएंगे। ओके, ओके, ग्रेट। देखो, जो भी हम खाना खाते हैं, फूड जो इंटेक करते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है, वहां स्टमक में से एसिड के साथ मिक्स होके हमारे आंतों में जाता है और आंतों में ये खाना अलग अलग डिवीजन में होता है। ज्यादातर वो कार्बोहाइड्रेट से शुगर के अंदर कन्वर्ट होता है, उसमें से शुगर जो है मतलब ग्लूकोज जो है वो अलग आता है। यही शुगर जब ब्लड के थ्रू पास आउट होता है तो वो सेल, हमारे बॉडी के जो सेल होते हैं उसके अंदर जाने का ट्राई करते हैं, लेकिन वहां पर इंसुलिन नहीं होने की वजह से वो उसके अंदर नहीं जा पाता और इसी के चलते इंसुलिन, पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है। यह इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के साथ ही घूम के सेल तक पहुंचता है और वहां पर जाके जो गेटवे रहता है यहाँ पर जो दिखाया गया है, ठीक है, तो ये इंसुलिन आता है, वो गेटवे में
काम करता है और फिर इन शुगर लेवल को सेल के अंदर जाने का रास्ता जो है वो ओपन होता है। ये ऐसी एक प्रोसीजर रहती है, ठीक है। अब ज्यादातर जब इंसुलिन दो तरीके से होता है कि एक तो इंसुलिन बनता है लेकिन उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मतलब वो परफेक्टली काम नहीं करता। इंसुलिन उसके रिसेप्टर पर लगा तो सही, लेकिन वो सिग्नल माइंड तक जो सिग्नल पहुंचता है वैसे ही सिग्नल अच्छे से नहीं पहुंचाता, जिसकी वजह से वो शुगर जो है वो सेल के अंदर नहीं जा पाता और ब्लड में रह जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि इंसुलिन ही कम बनता है, इंसुलिन बनता ही नहीं हमारे बॉडी के अंदर, और उसकी वजह से ही भी शुगर लेवल जो है हमारे बॉडी में बढ़ता है, ठीक है। मतलब बीटा सेल वर्क्स का अच्छे से नहीं करेगा तो इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं बनेगा, इंसुलिन नहीं बनेगा तो डेफिनेटली ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ेगा, ठीक है। वन रीजन इंसुलिन इनफ अमाउंट में बढ़ रहा है लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस नहीं है, अच्छे से काम नहीं करता इंसुलिन, राइट। तो भी शुगर लेवल हमारा जो ब्लड रहेगा उसके अंदर रहता है। तीसरा पॉइंट ये भी रहता है कि जैसे बीटा और अल्फा सेल्स के बारे में बात की तो अल्फा सेल का वर्क जो है वो ज्यादा रहता है ना। तो कई कई कबार ऐसा होता है कि हमको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इसका इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा हीट हो गई तो वो चिपक जाता है कहीं पर, तो फिर वो छूटता नहीं है, ठीक है। जैसे शीशो देखा होगा आपने, है ना, जहां पर एक साइड नीचे जाती है तो दूसरी साइड ऊपर जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से अल्फा और बीटा सेल से शीशो की तरह काम करता है। जैसे बीटा सेल वर्क करेगा तो अल्फा सेल वर्क नहीं करेगा, और अल्फा सेल वर्क करेगा तो बीटा सेल वर्क नहीं करेगा, ये कंडीशन रहती है, ठीक है। ये अपने आप बैलेंस होते हैं, ठीक है। तो जब अल्फा सेल्स वर्क करने लगते हैं ज्यादा तो बीटा सेल्स वर्क नहीं करेंगे, और बीटा सेल्स वर्क नहीं करेंगे, इंसुलिन नहीं बनेगा और बॉडी में शुगर लेवल जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। और चौथा पॉइंट है डायबिटीज होने के लिए हार्मोनल चेंजेस। मतलब हमारे बॉडी में ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो भी हार्मोन्स है, बहुत सारे हमारे बॉडी में हार्मोन्स है, उसमें से आज हमने दो हार्मोन्स के बारे में, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, वो हम आज के बारे में सुन रहे हैं। तो ऐसे इन जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस होते हैं जिसकी वजह से भी शुगर लेवल जो है वो ब्लड में रहता है और डायबिटीज होने की संभावना, पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ओके, ग्रेट। तो अब डायबिटीज है ये कैसे पता चलेगा, व्हाट इज द सिम्टम्स, समझ में आया? तो आप चैट बॉक्स में जितने भी लोग हैं आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको डायबिटीज में कौन कौन से सिम्टम्स थे। ओके, ये जो डायबिटीज है, जो जैसे मैंने पहले बताया कि इट्स अ मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर, ये हमारे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की वजह से होता हुआ है। तो आपको ये डायबिटीज की वजह से कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो है आप फेस कर रहे थे, आप चैट बॉक्स में भी लिख रहे हो, हम इसका डिस्कशन भी आज यहाँ पर हम कर रहे हैं। ओके, किसी का सवाल है, न्यूबॉर्न बेबी ऑल्सो डायबिटिक्स, हाउ, ओके, हाउ कैन वी अवॉइड दिस डिजीज? ओके ओप्पो, ग्रेट। हम इस सेशन के दौरान आपको पता चलता जाएगा। आप चैट बॉक्स में तब तक लिखते रहिएगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स जो थे वो डायबिटीज की वजह से फेस होते हुए देखने को मिलते थे। ओके ओके, टाइप 1 है या टाइप 2 कैसे पता चल सकता है? ओके, ग्रेट। और कोई सवाल हो तो भी आप लिख सकते हो। डायबिटीज ना लक्षणों કેવી રીતે થાય છે તેના લક્ષણ? यस, नरेंद्र सागर जी, यहाँ पर यही बताया जाएगा कि सिम्टम्स क्या है, क्या क्या उसके प्रॉब्लम्स है, ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं जब डायबिटीज होता है। तो ये यही है कि अगर आपको ये सारी चीजें फेस हो रही है तो इट मे बी पॉसिबल कि आपके बॉडी में शुगर लेवल ज्यादा है ना। शुगर लेवल हमारे बॉडी में होना ही चाहिए। तो मैं सबको ये भी बताना चाहूंगा कि शुगर उसको बैलेंस करना है ना। शुगर हम जीरो नहीं कर सकते, उसको हमें बैलेंस करना है। ओके, वॉकिंग इज हेल्पिंग टू रिड्यूस द डायबिटीज, डेफिनेटली उसके बारे में अंबालाल पटेल, मिनेश कुमार, ये सब हम बातचीत करेंगे।
जब हम उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, उसके बारे में आपको क्या करना है वो भी सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ठीक है। ओके ग्रेट। तो जब डायबिटीज होता है तो यूरिनेशन बढ़ जाता है। यहाँ पर चैट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कुछ लिखा है, ढेर सारा प्यार आपको मेरा मुझे मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सबसे, आप सबका जो चैट बॉक्स के साथ कनेक्टिविटी है वो देख के बहुत अच्छा लगा। ये इसी तरीके से चैट बॉक्स में बने रहिएगा। और देखिए यस, चैट बॉक्स में बहुत सारा लोग लिख रहे हैं कि उनको जो जो प्रॉब्लम्स फेस होते हुए, तो यूरिनेशन सबसे पहला जो है आपका, यूरिनेशन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। यूरिन फ्लो बढ़ेगा, मतलब नॉर्मल जो कंडीशन में यूरिनेशन होता है उससे ज्यादा होता है, उससे ज्यादा, ठीक है। ये एक सिम्टम्स हम देखने को मिलता है। फिर सडनली वेट लॉस हो जाएगा, कुछ भी नहीं है और महीने में डायबिटीज की वजह से 5 किलो 7 किलो 8 किलो ऐसा वेट जो है वो करीबन कम होता हुआ देखने को मिलता है। आपका बॉडी आपको अच्छे से रिएक्ट नहीं करता, मतलब टायर्डनेस जो है वो वहां पर बढ़ जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स है, आपको ऐसा लग रहा है कि थकान मुझे नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा लग रही है, तो डेफिनेटली इट्स अ सिम्टम्स ऑफ शुगर। ओके यस, पग में जड़ जाने, पग में हमें लगता है ना, टिंगलिंग होता है हमारे पग में, नम हो जाता है हमारे पैर, तो ये भी एक सिम्टम्स है। अगर आपको बार बार ऐसी कंडीशन हो रही है तो हो सकता है। फिर वीमेन में खास करके वजाइनल इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ना, वजाइनल प्रॉब्लम हो जाता है। फिर भूख बार बार लगती है, हंगर, मतलब खाया है फिर भी हंगर, भूख लगती है, खाना खाया फिर भी भूख लगती है, ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम्स जो है हमें देखने को मिलता है। फिर ब्लर विजन, हमारी आईसाइट जो है वो कमजोर हो जाती है। हमें जो दिखाई देता है वो धुंधला दिखाई देता है, और जिसकी वजह से ये एक सिम्टम्स ही है ना, ये एक सिम्टम्स ही है। ओके ओके ग्रेट ग्रेट। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो है अगर हमें फेस होते हुए दिख रहे हैं तो समझना है कि डायबिटीज मतलब शुगर, हमारे ब्लड के अंदर शुगर की अमाउंट ज्यादा है। यस, हाइपोग्लाइसेमिया। ओके ग्रेट, यही सारी चीजें ज्यादा होती है। ओके ग्रेट। अब डायबिटीज है वो कैसे पता चलेगा, तो जैसे ही हम ब्लड रिपोर्ट करवाते हैं, ये सारे सिम्टम्स हमें फील हो रहे हो, ऐसा हमें महसूस हो, तो हमें क्या करना है, डॉक्टर को दिखाना है और डॉक्टर रिपोर्ट लिख के देंगे हमें, ठीक है। तो उसमें हमें रिपोर्ट करवाना है, फास्टिंग ब्लड, हमें फास्टिंग का शुगर लेवल रिपोर्ट करवाना है, खाने के 2 घंटे के बाद का रिपोर्ट करवाना है, और हमें एवरेज 3 महीने का जो HbA1c रिपोर्ट आता है वो भी हमें करवाना है, और उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे वी आर डायबिटिक और नॉट। अगर डायबिटीज है हमें तो वो कुछ दवाइयां देंगे, उसको लेना है, और साथ साथ में यहाँ पर बताई गई कुछ फूड टिप्स और लाइफस्टाइल जो है आपको फॉलो करनी है, जिसकी वजह से आप उस पर कंट्रोल जो है वो पा सकते हो, ठीक है। ओके ग्रेट। तो अब डायबिटीज नॉर्मल कंडीशन में अगर है, आपका शुगर नॉर्मल है, तो फास्टिंग जो 100 से कम हो, 70 से 100 से बीच में रहेगा, तो आपका फास्टिंग मतलब सुबह का अर्ली मॉर्निंग जो हम ब्लड देते हैं और वहां से जो हमारा शुगर खाए पीने का जो शुगर का टेस्ट रहता है वो खाने के बाद का जो है वो 140 से 100 के बीच में अगर रहता है देन इट्स गुड। ओके, ये नॉर्मल कंडीशन में रहता है। प्री डायबिटिक कंडीशन के अंदर क्या रहता है, 100 से लेके 125 के बीच में रहेगा खाने के पहले का, ठीक है, फास्टिंग, है ना। तो फास्टिंग अगर 100 से 125 के बीच रहेगा तो ये प्री डायबिटिक है। आप प्री डायबिटिक हो और समझ लीजिए कि खाने के बाद 140 से लेके 200 तक आपका शुगर जा रहा है, तो आप प्री डायबिटिक हो, ठीक है। और डायबिटीज कब होता है, जब 125 फास्टिंग जो है आपका वो 125 से ज्यादा है, देन यू आर डायबिटिक। एंड 200 से ज्यादा है, ठीक है, खाना खाने के 2 घंटे बाद का आपका जो शुगर है वो 200 से ज्यादा है, देन डेफिनेटली आप डायबिटिक। ओके, तो ये नॉर्मल नंबर है जहां आप रिपोर्ट जब करवाओगे
तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें, ठीक है। और डायबिटीज में देयर इज अ टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, जेस्टेशनल डायबिटीज है एंड प्री डायबिटीज। देख, जैसे मैंने बताया प्री डायबिटिक का तो हमने वो रेंज देख लिया, ठीक है। लेकिन टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज के लिए ये सारी कॉमन रहती है, जो नॉर्मल है और डायबिटिक है, वो रेंज जो है वो सारा सेम रहता है, ठीक है। तो हम बारी बारी से जानेंगे कि कौन सा डायबिटीज क्या है, ठीक है। ग्रेट। तो अभी हम सब लोग बातचीत करने वाले हैं टाइप 2 डायबिटीज के ऊपर, ठीक है। तो मैं जानना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर बैठे हुए जो टाइप 2 है। अगर आप टाइप 2 हो तो आपको 2 टाइप करना है, चैट बॉक्स में लिखना है 2। ओके, चैट बॉक्स ओपन है। ओके, विगड़ नैना जी लिख रहे हैं हाउ टू कंट्रोल डायबिटीज। यस विगड़ जी, उसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि डायबिटीज क्या है। अगर हम उसको ही नहीं समझेंगे तो हम अपने बॉडी को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डायबिटीज को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज डायबिटीज, ठीक है। और वो क्यों होता है, उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, वो सारी चीजें हम समझेंगे। तो उसको जब हम आपको उसका प्रिवेंशन बताएंगे, उसका वो बताएंगे, तब आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके ग्रेट। ओके, टाइप 2 डायबिटीज, बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन उसको कहते हैं टाइप 2 किसको कहते हैं वो पता नहीं, ठीक है। तो उसके बाद मैं वही समझा रहा हूँ। मैं तो यही जानना चाहता था कि आपको पता है कि नहीं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस, ओके ग्रेट। इंसुलिन पर भी आधारित होता है। जब डायबिटीज सीवियरिटी पर जाता है, वो दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता, तो हमें वहां पर इंसुलिन की जरूरत भी होती है। काला, ओके, जामर हो चुका है। ओके, तो टाइप 2 डायबिटीज क्या है? तो टाइप 2 डायबिटीज, ये जनरल डायबिटीज 90% लोगों को यही डायबिटीज होता है जो जीनेटिक नहीं होता, जो जीनेटिकली मतलब बाय बर्थ नहीं होता, या फिर आपका इंसुलिन, आपका पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन वो कम मात्रा में कर रहा है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस कम है। सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, इफेक्टिवनेस है, लेकिन सेल जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, सेल तक वो जो इंफॉर्मेशन पास ऑन होनी चाहिए वो नहीं होती। फोर्थ थिंग, हम जब खाना खाते हैं और ब्लड में शुगर आता है, उसका सिग्नल जो है वो माइंड से पेनक्रियास तक जो जाना चाहिए, मतलब नर्वस सिस्टम, ओके, तो वो सिग्नल अच्छे से नहीं पहुंचता। जैसे घर में आ रहे हैं 10 लोग, लेकिन हमें पता चला कि सिर्फ 5 लोग आ रहे हैं, तो हम किस हिसाब से चाय बनाएंगे? 5 लोगों के हिसाब से बनाएंगे, राइट। लेकिन हमारे यहाँ पर 10 लोग आ जाते, देन ये वाली चीज है, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता, मतलब इंफॉर्मेशन सही से नहीं मिलता। तो जो डायबिटीज मतलब शुगर ब्लड के अंदर बढ़ता रहता है, वो सारा डायबिटीज जो है वो टाइप 2 डायबिटीज बताया जा सकता है, ठीक है। जिसके अंदर पेनक्रियास होता है लेकिन पेनक्रियास अच्छे से इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है। ग्रेट। अब टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज जो है, जो बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है। टाइप 1 डायबिटीज इज अप्रोक्सीमेटली 5%, है ना, बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। और ये चिल्ड्रन में और यंग एडल्ट्स में, यंग एडल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें देखने को ज्यादा मिलता है। तो यंग एडल्ट्स में भी ये होने की पॉसिबिलिटी अभी अभी देखने को मिली है कि ऐसा है कि पेनक्रियास जो है वो, बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन जो है वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाता। उसका भी रीजन रहता है कि हमारी ही इम्यून सिस्टम जो होती है वो बीटा सेल्स को डैमेज कर देती है, और जिसकी वजह से बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते। ओके, उसके होने के रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं? जीनेटिक, मतलब जो जीनेटिक प्रॉब्लम्स जिसको बोलते हैं, बाय बर्थ होता है, ठीक है, ये एक रीजन हो सकता है। कई कबार वायरस की वजह से या फिर एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ ट्रिगर होता है जिसकी वजह से जो हमारे बीटा सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और डेथ हो जाते हैं, और उसकी वजह से भी जो टाइप 1 डायबिटीज है जो डिटेक्ट होता है एक चिल्ड्रन में और यंग एडल्ट्स के अंदर, ये ज्यादातर देखने को मिलता है। ओके, और तीसरा जो है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज, ठीक है। जेस्टेशनल डायबिटीज में क्या होता है?
जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान उसको शुगर का रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है, और जब ये बढ़ता है तो डेफिनेटली इनटेक बढ़ेगा, स्वीट क्रेविंग भी बढ़ेगी, ज्यादा खाएंगे, बच्चे का वेट ज्यादा होगा, और उसी के चलते आफ्टर डिलीवरी जो है ये शुगर जो है अपने बॉडी में सुटअप होता है और डायबिटीज आने की पॉसिबिलिटी जो है वो वहां पर बढ़ जाती है। और ऐसा बताया जाता है कि 3.5 kg से ज्यादा जिस बेबी का वेट है उस पर रिस्क ज्यादा रहता है टाइप 2 डायबिटीज आने के लिए, ठीक है। और 100 फीमेल्स में से 18 ऐसे होते हैं जिनको ये GDM मतलब गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो उसका टेक केयर डेफिनेटली करना चाहिए। ओके, तो कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी हैं जो ये हमारे TRM फैमिली के साथ कुछ समय से है, और उनको ये डायबिटीज के अंदर डायबिटीज शुगर कंट्रोल में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला हुआ है। तो मैं जान सकता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज में कंट्रोल मिला हुआ है, जो हमारी TRM फैमिली परिवार के साथ है, और जिनको कुछ ना कुछ डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए बेनिफिट मिला हुआ है। ठीक है, आप अपना हैंड रेस जो है वो कर सकते हो, या फिर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। डेफिनेटली हम आपका कुछ ना कुछ आपसे बातचीत करेंगे, और आपसे भी हम जानेंगे। ओके ओके, सुपर। जिज्ञासा जी है, और माय फादर ऐसा लिखा हुआ है, इंसुलिन लो ત્યારે કંટ્રોલમાં રહે છે। ओके, चौहान योगेश जी, ओके। ज्योति दवे, यस। ओके, यहाँ पर हमारे साथ हैंड रेस किए हुए भी बहुत सारे लोग हैं। तो सबसे पहले हम रूपल जी है, रूपल रावल, हम मेरे यहाँ पर दिख रहे हैं, तो उनको हम अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजेंगे। यस रूपल जी, गुड थैंक यू इवनिंग। सो मच, वेरी गुड इवनिंग सर। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिली सर, बहुत ओके, कुछ नया जानने को भी मिला। वैसे तो यहाँ जो TRM सिस्टम है उससे तो जानने को मिलता है, लेकिन आज जो तीसरा जो था ना वो डायबिटिक के रिलेटेड, तो वो जानने को एक नया मिला। मैं मेरी डॉटर का रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी, जो ओके। टाइप 1 डायबिटीज है। आवाज आ रही है सर? कौन सा डायबिटीज है रूपल जी, आपने बताया? यस, यस सर, टाइप 1 डायबिटीज है सर मेरी अच्छा, डॉटर को। आपकी डॉटर को टाइप 1 डायबिटीज है। ओके यस, ग्रेट। कितने 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 टाइम से है? उसकी एज 20 इयर्स थी तब उसको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था। अभी 2 साल कंप्लीट हो गए हैं सर। अच्छा, 2 साल और हो गए। यस सर, 2 साल हो गए। और तो कैसे जब पता चला कि डायबिटीज है? सर एक्चुअली हमारी फैमिली में किसी को भी डायबिटीज नहीं था, तो ओके मॉर्निंग वो उठी ना तब उसको अनइजीनेस फील हो रहा था, तो उसको हम बताया कि भाई अनइजीनेस फील हुआ है, तो हमने ऐसा बोला कि भाई थकान होगी इसलिए ऐसा होता था। और ऐसे बात करते करते अचानक ही वो बेहोश हो गई थी। और फिर हमने, जैसे कोई भी पर्सन बेहोश हो जाता है तो हम क्लिनिक जाते हैं, और क्लिनिक पर डॉक्टर ने इमरजेंसी में ग्लूकोज चढ़ाया। तो वो ओके ग्लूकोज बॉटल अभी अप्रोक्स 5-10 मिनट्स ही हो गए थे, तो तब उसकी जो वेन थी ना तो उसमें से ब्लड उसको निकल आया था। तो डॉक्टर भी हैरान हो गए कि क्यों ऐसा हुआ। फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी ये ब्लड निकल आया है तो आप बड़े से हॉस्पिटल ले जाओ, क्योंकि यहाँ पर उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगी थी। फिर उसको हमने बड़े से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, तब वहां पर पता चला कि उसको शुगर डिटेक्ट हुआ है, और तब उसका शुगर जो था ना वो 600 तक था। तो ओके हमको बहुत ही शॉक हो गया, और वहां पर पता चला, और वो 15 डेज तक वो कोमा में चली गई थी, अनकॉन्शियस थी। तो और बहुत सारे रिपोर्ट्स हमने किए, तब उसमें पता चला कि उसको GBS का वायरस लगा है, गुलिबाली सिंड्रोम कहते हैं उसको। यस। उससे उसका जो बॉडी में पेन क्रियाज है ना उसके ऊपर इफेक्ट हुआ है, इसीलिए उसको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है। अच्छा तो अच्छा पता अच्छा। चला 15 डेज तक कोमा में थी, फिर प्लाज्मा थेरेपी करवाई और कोमा से उसको बाहर लाया। और उसका जो शुगर था ना सर, तो इसको डॉक्टर ने बोल ही दिया था कि अब ये टाइप 1 डायबिटीज है और उसका पेनक्रियास डैमेज है, इसीलिए उसको ऊपर से इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। और ओके, इंसुलिन के कितना आ रहा था उस टाइम इंसुलिन आपकी डॉटर का?
सर जब हॉस्पिटल में थी ना तब उसको तो एक बड़ा सा इंसुलिन था ना वो लगा कर रखा ही था, वो 24 आवर्स। तब अच्छा। उसका शुगर जो था ना वो 250 के आसपास तो रहता ही था सर। ओके। और ओके। उसका इंसुलिन ऑटोमेटिकली जाता था जब ये ओके। फ्लक्चुएशन होना तो। लेकिन उसके बाद जब वो घर पर आई ना तब उसका डॉक्टर ने डोज सेट किया। तो डोज सेट किया ना तो उसमें 50 इंसुलिन पॉइंट ड्यूरिंग द डे लेने पड़ते थे। जब ओके। भी वो इंजेक्ट करे तो उसके पहले वो शुगर डिटेक्ट करती थी, फिर उसके बाद वो इंसुलिन लेती थी। तो ओके। उसमें उसका 350 400 के आसपास तो आता ही था क्योंकि वो स्टार्टअप पीरियड था। और उसको भी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया। ओके। और तो स्ट्रेस की वजह से भी ये था, और थोड़ा वो फूडी भी थी ना तो उसको जब भी कुछ भी खाने को मन किया था, वो कभी कभी हम नहीं थे ना तब भी वो खा लेती थी। तब वो शुगर चेक करे ना तो ज्यादा आता था, इसलिए हमको भी पता चल गया था कि अच्छा कुछ खाया है तो उसका शुगर फिर से अप हो जाता है। ओके। ओके। तो ग्रेट। फिर? ये बहुत ही चलता रहा, डॉक्टर के साथ भी कंसल्टिंग हम करते रहे क्योंकि रिपोर्ट था कि भाई इतना इंटेक इंसुलिन का लेते हैं और इतना शुगर आता है, वो डेली तो फिर आपको? अपडेशन डॉक्टर के साथ। ओके। यस। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कंट्रोल नहीं होता था ना तो डॉक्टर ने इंसुलिन के डबल डोज करने लगे। तो ओके। वो 100 तक चला गया, तो उसकी वजह से उसको साइड इफेक्ट में बहुत सारे चैलेंज हो गए, यानी कि पीरियड इरेगुलर हो गए, बेली फैट गेन होने लगा, स्वेटिंग बहुत ही होने लगी, ये सारे चैलेंज होने लगे। और मैं यहाँ पर जुड़ी थी वेट लॉस के लिए ये सिस्टम में। तब मुझे पता चला कि यहाँ पर हेल्थ यानी कि किसी को भी हेल्थ रिलेटेड चैलेंज हो तो उसमें भी अच्छा सा रिजल्ट मिलता है। ओके। बस ये कम्युनिटी के साथ उसको जुड़ना बहुत ही जरूरी था क्योंकि एक यानी कि जो भी एज थी ना वो अभी तो छोटी है, लेकिन वो डिप्रेशन में चली गई थी कि कैसे मैं उसको कवर कर सकूं। धीरे ओके। ग्रेट। धीरे। मतलब आपको ये TRM फैमिली मिली, उसके बाद क्या हुआ? यस सर। फिर उसके बाद हमने उसको यहाँ पर ज्वाइन किया ना तो उसमें क्या था कि उसकी लाइफस्टाइल करेक्शन करनी पड़ी। उसका जो कोच था ना, यानी कि मेरा जो कोच था उससे कोऑर्डिनेट करने लगे क्योंकि कुछ भी इंटेक करे ना तो उसका शुगर स्पाइक हो जाता था। तो कुछ ना कुछ ऐसा इंटेक करे जिस शुगर भी स्पाइक ना हो, फीलिंग हंगर सेटिस्फेक्शन हो, और उसको भी ऐसा लगे कि यस मैंने एंजॉय किया है। तो उसका डाइट प्लान भी अच्छे से उसने मैनेज किया, एक एक्टिव लाइफस्टाइल भी उसने एक एडॉप्ट की, और ओके। साथ में नॉन। तो ये अभी तीनों। अभी उसका 2 साल के बाद अभी उनका डायबिटीज कितना रहता है? सर उसका जब स्टार्टिंग था ना तब उसका जो 3 मंथ का जो रिपोर्ट आता है ना वो 14 था सर, जो ओके। कि 6 के अंदर आना चाहता था, लेकिन अभी 2 साल में 10 के अंदर आया है सर। और क्या बात अभी जो इंसुलिन के जो पॉइंट थे ना तो वो 15 से 100 चले गए थे, अब 100 से 30 के अंदर आ गए हैं। 30 तो के अंदर आ गए? क्या बात, यस बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब रूपल जी, बहुत ही। आपकी जो डॉटर है, जो 20 साल तक उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कोई वायरस की वजह से ये टाइप 1 डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, आया। और जब ये TRM फैमिली आपको मिली तब उनके इंसुलिन जो थे वो 100 थे, और जो HbA1c जो 14 था। और 2 साल के बाद अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि उनका इंसुलिन लेवल जो है वो HbA1c 10 बिलो 10 हो चुका है। और इंसुलिन जो ले रहे थे जो 100 हो चुका था वो अभी बिलो 30 है, राइट? यस सर। ग्रेट रूपल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और जितने भी लोग यहाँ पर टाइप 1 के बारे में पूछ रहे थे, है ना, तो आपको समझना है कि टाइप 1 में भी आपको अपनी लाइफस्टाइल और ये कम्युनिटी आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकती है आपके इंसुलिन को। लेकिन डेफिनेटली आपके बॉडी में आपका इंसुलिन कितना चल रहा है डिपेंड्स ऑन दैट, और आपको ये बेनिफिट जो है डेफिनेटली कम्युनिटी से आपको मिल सकता है, राइट? तो थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारे साथ दीना बेन पंड्या है जिनका हैंड रेस है, तो उनको उनसे बातचीत करेंगे। यस दीना बेन, गुड इवनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। जी दीना बेन, बताइए आपका आपको शुगर था तो कितना था और किस तरीके से था?
हाँ सर, मुझे जब फर्स्ट टाइम मैंने शुगर सर चेक करवाया तो जब मुझे पता नहीं था कि मुझे सर शुगर है, लेकिन मैंने रात को सर दवाई खाया, सॉरी सर, रात को मुझे चक्कर आए थे सर। और फिर सुबह में मैंने चेक करवाया कि तो सर डॉक्टर ने मुझे बोला सर कि आपको शायद शुगर हो सकता है, आप चेक करवाओ। तो मेरा शुगर सर चेक करवाया तो 200 सर शुगर आया मेरा। और फिर बाद में मेरी मेडिसिन स्टार्ट कर दी डॉक्टर ने। और जैसे जैसे मैंने मेडिसिन ली सर, वैसे वैसे मेरे मुझे पता नहीं था सर कि शुगर ऐसे कंट्रोल करते हैं। और मैंने खाने पीने की जो हैबिट्स थी ना वही रखी। शुगर, हाँ सर, मुझे शुगर था लेकिन मैं जो खाती पीती थी वही मैंने खाना शुरू ही रखा। तो धीरे धीरे मेरा शुगर सर बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे 1 साल 2 साल मतलब के बाद आपको दीना जी टाइप टू डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था, राइट? हाँ वो और सर जब मुझे, डिटेक्ट हुआ तब तब आपका डायबिटीज कितना आ रहा था? जो नंबर्स मैंने बताया उसमें से आपको नंबर्स कुछ याद है कि उस टाइम आपका 100+ हो रहा था, कितना आ रहा था? हाँ सर, मेरा शुगर बढ़ रहा था। जैसे कि पहले मेरा 200 आया था सर, फिर 250 आया, फिर 300 आया, ऐसे ऐसे बढ़ रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला सर कि आप मेरा वेट भी सर ज्यादा था, तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आप वेट लॉस कीजिए। और वेट लॉस करने से भी आपका शुगर कंट्रोल हो सकता है। और खाने पीने की जो आपकी हैबिट्स है उसमें थोड़ा बदलाव लाइए। लेकिन सर ओके। मैं सीरियस नहीं थी। मैं खुद सीरियस नहीं थी, मैं ध्यान नहीं देती थी सर अपनी अपने पे। और मुझे मेरे बेटे का भी थोड़ा टेंशन था, उसकी वजह से ही मुझे शुगर आया था सर। ओके। तो हाँ, इसलिए फिर मैंने ध्यान नहीं दिया तो शुगर सर बढ़ता ही गया, 350 जितना शुगर हो गया। और अब जब मैं दिखाने गई डॉक्टर को तो उन्होंने बोला कि आपको रिपोर्ट अब 350 आ गया है, तो ग्रेट। आपको अब ओके। 350 के ऊपर जाएगा तो आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। तब ओके। मुझे सर पता चला कि मुझे इंसुलिन नहीं लेना है, क्योंकि मैंने कई सारे लोगों से सर पूछा था कि हाँ, इंसुलिन जब स्टार्ट करते हैं तो फिर लाइफ टाइम इंसुलिन लेना पड़ता है। और सही। तो उसकी फिर वजह आपको से, ये फैमिली कैसे मिली और उसके बाद आपको क्या बेनिफिट मिला, दीना जी? हाँ सर, मेरे वेलनेस कोच मिले और उन्होंने मुझे गाइड किया। तो मैंने सर वेट लॉस के लिए ही स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वेट लॉस के साथ साथ मुझे शुगर में भी इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने ओके। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट सर चेंज किया, और ब्रेकफास्ट चेंज करने के साथ मेरे 6 मंथ में 12 kg वेट लॉस किया सर। और उसके साथ ही मुझे 6 मंथ में ही सर जो मेरी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आ गए सर। और मुझे बहुत सारी तकलीफें थी, जैसे कि शुगर की वजह से सर मुझे हाई बीपी था, फिर माइग्रेन हुआ था, फिर मुझे गायनेक प्रॉब्लम भी हुआ था सर। तो वो सारे ओके। में मुझे 1 साल के अंदर मुझे सारे बेनिफिट मिले सर। और ओके, जो ग्रेट। मुझे अभी पीरियड, आपका डायबिटीज कितना रहता है, अभी दीना जी? सर अभी सर कंट्रोल में ही रहता है। कंट्रोल में मतलब 200 अभी से बिलो कि हाँ 140 से वन बिलो? फोर्टी 140 सर आता है, इतना आता है, यस, 140 अमेजिंग। आए, 130 आए, इतना ही आता है सर अभी। ग्रेट, ग्रेट। मतलब आपको कोच मिले जिन्होंने कम्युनिटी के साथ जुड़ा और आपने अच्छा खाने की शुरुआत की। ये तीन चीजें जब मिलती है ना, कोच, हाँ कम्युनिटी और अच्छा खाना, ये जब मिलता है तो डेफिनेटली हमें बेनिफिट मिलता है। यस, थैंक यू सो मच दीना जी, बहुत अच्छा लगा। आपका रिजल्ट बहुत सही है। और यहाँ पर देखते हैं, अब हमारे साथ मुरुगेश जी है, तो उनसे भी सुन लेते हैं। यस मुरुगेश जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड आई एम मॉर्निंग। ऑडिबल सर। यस, यू आर ऑडिबल। सर मेरे को डायबिटीज डिटेक्ट हुआ 8 अप्रैल 2020 को। ओके। सडनली अननेजीनेस जैसा लगा और मैं हॉस्पिटल में गया, तब मेरा डायबिटीज डिटेक्ट हुआ। तो मेरा फास्टिंग सुबह का ही था, सुबह को भी मेरे को हॉस्पिटल गया तो 255 जैसा आ गया था फास्टिंग का, बहुत सीवियर था। तो मैंने डॉक्टर के साथ, डॉक्टर ने मेरी डायबिटीज की दवाई शुरू की। मैंने वो डॉक्टर की दवाई ली, साथ साथ में वो डायबिटीज की दवाई के साथ साथ थोड़े हेल्थ इश्यू भी हो गए, जैसे बीपी और थायराइड का। तो ये सारी सारी टेबलेट शुरू हो गई। मेरी लाइफस्टाइल, एज मैं बैंक में हूँ तो लाइफस्टाइल भी अनइजीनेस, अनरेगुलर थी। तो साथ साथ में मेरे को चेस्ट पेन होने लगा, मेरी डॉक्टर की विजिट बढ़ने लगी। मेरे फैमिली में भी देखा था डायबिटीज के कारण बहुत इश्यू होते हैं। तो मैं सोच रहा था कि मेरे को कुछ अच्छा मिल जाए। तब मेरे वेलनेस कोच से मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे ये अपनी टीआरएम सिस्टम के साथ मेरा अटैचमेंट किया। ये सिस्टम के साथ जैसे जैसे मैं अटैच होता गया, ऐसे ऐसे मेरी हेल्थ में भी अच्छा रिजल्ट आने लगा और मेरे डॉक्टर से
कंसल्ट किया तो उन्होंने भी बोला आप जो कर रहे हो, क्योंकि मेरे को 2020 में डायबिटीज डिटेक्ट होता है, एज अ बैंकर मेरे को कोरोना में बहुत सेफ रहना था। हाँ। तो डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। आफ्टर मेरे को अप्रैल में हुआ, दिसंबर में मेरी डायबिटीज नॉर्मल हो गई, और डायबिटीज और थायराइड बीपी की सब टेबलेट चल रही थी। अप्रैल में करीबन 12 टेबलेट, वो मेरी दिसंबर में 3 पे आ गया। और नेक्स्ट ईयर दिसंबर 2021 में अब कोई डायबिटीज की दवा नहीं चल रही है, कोई थायराइड की दवा नहीं चल रही है। क्या बात टीआरएम सिस्टम में जैसे जैसे आ गया, सिस्टम में सब पता चलता गया, कैसा खाना है, कैसे करना है, सब पता चलता गया। मेरी जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी बैड हैबिट्स थी, इधर आने से जो मेरे को अच्छी लग रही थी, ये सिस्टम के आने के बाद मेरे को पता चला कि ये सारी मेरी अच्छी हैबिट्स वो बैड थी लगी। अभी अच्छी है सिस्टम के साथ, ये हैबिट्स आने से मेरा डायबिटीज नॉर्मल हो गया, मेरी दवाई बंद हो सही, गई। सेम बिल्कुल रिजल्ट, सही है। सेम रिजल्ट मेरी मदर को है जो 78 ईयर्स की है। ओके। डायबिटीज में अच्छा रिजल्ट है सर उनका। 78 ईयर्स में डायबिटीज की दवा डॉक्टर ने कम कर दी है सर। क्या बात है, बहुत सही है, बहुत अच्छा लगा मुरुगेश जी कि आपका जो एक तो कोच मिले, उन्होंने कम्युनिटी से जुड़ा, और आपने अच्छा खाने की शुरुआत जब की तो डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट जो है यहाँ पर आपको मिले, राइट। तो थैंक यू सो मच मुरुगेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपका आपका जर्नी जो है यहाँ पर सुन के। और यहाँ हमारा समय भी समाप्त होने को है, और एक ओप्पो करके है जो बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली लास्ट की 2 मिनट्स में आपके साथ बात करूंगा, आप रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। तो अभी कल का जो सेशन रहने वाला है, जहां पर हम ये सारी चीजों के बारे में जानने वाले हैं कि जो डायबिटीज है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, कौन सा खाना खाना चाहिए हमें, किस तरीके से, जैसे इन लोगों को बेनिफिट मिला, जैसे इन मुरुगेश जी ने बताया कि उनका टोटली 2 साल के अंदर अंदर रिवर्स हुआ, तो कौन सा लाइफस्टाइल उन्होंने फॉलो किया, क्या खाना खाया, वो सारी चीजें जो है ना मैं कल डेफिनेटली आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये टीआरएम फैमिली है जिन्होंने एक सरप्राइज बोनस भी आप सबके लिए अरेंज किया हुआ है, राइट। तो ये एक सरप्राइज बोनस भी कल के दिन में आपको पता चलेगा, तो मेक श्योर आप भी अटेंड करो कल का सेशन, मिस मत कीजिएगा कल का सेशन। और आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं जो डायबिटिक है, या आपके रिलेटिव है, या आपके सर्कल में है, या आपके कॉलिग्स है, कोई भी है, तो उनको डेफिनेटली कल का सेशन अटेंड करने को बोलिएगा, क्योंकि वहां पर आपको प्रिवेंशन किस तरीके से कर सकते हैं, बचा कैसे जा सकता है, वो सारी चीजों के लिए आपको कल समझाने वाले हैं। और साथ साथ में टीआरएम फैमिली से एक सरप्राइज भी बोनस, सरप्राइज बोनस भी अरेंज किया हुआ है, तो उसके बारे में भी आप सबको कल पता चलने वाला है, राइट। तो यहाँ पर ओप्पो ओप्पो करके है जो कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने 3-4 बार लिखा हुआ है ओप्पो PH2531। ओके, उनका वीडियो भी चालू है, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा हुआ है, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो तो आपके स्क्रीन पर जो आएगी उस पर आपको क्लिक करना रहेगा। CPH2531 ओप्पो CPH आपने लिखा हुआ है आपकी डॉटर के बारे में जो बहुत छोटी है, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट, अगर आप अनम्यूट नहीं, हाँ यस जी बताइए, क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका? अशोक पंड्या। हाँ अशोक जी बोलिए। मेरी दीकरी को 3 दिन पहले ही हॉस्पिटलाइज किया गया। ओके उसको 4-5 दिन से अचानक वेट खत्म हो गया था, कम हो गया। ओके हमने ओके अचानक लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पास गए, उसका रिपोर्ट निकालो, तो उन्होंने अपनी सूझबूझ से उसका रिपोर्ट निकाला, तो लगभग 388 आया, ओके 387 रिपोर्ट में आया। फिर बाद में ओके। हॉस्पिटलाइज में गया मैं डॉक्टर के पास, उन्होंने हाँ तात्कालिक बोला आपकी बेटी को तुरंत का तुरंत भी दाखिल कर दीजिए, नहीं तो ओके कोमा में जा सकती है, या तो कुछ भी उसको हो सकता है। तो मैंने ओके। उसको भी दाखिल किया है, अभी मेरी बेटी यहीं पे ही है, देखो हाँ हाँ हॉस्पिटल हाँ। में ही है। ओके अभी उसको 2 दिन से चल रहा है कि अभी आज तो कल सुबह में उसको कितना आया था, आज सुबह में 95 आया था, भोजन के ओके बाद 130 के आसपास आया। अभी ओके पूरा दिन चल रहा है, अभी 295 दोपहर को भोजन के बाद आया। तो ओके अभी उसको
कैसे अभी आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे उसके लिए? हाँ, देखो अभी अभी की सिचुएशन कैसी है, क्या नाम बताया आपका? मेरा नाम अशोक पंड्या, मेरी बेटी नंदिनी पंड्या। ओके अशोक जी, तो अभी कैसा है कि अभी जो करंट सिचुएशन है वो मेडिकल कंडीशन है। आप एक बार उनकी ट्रीटमेंट जो है वो खत्म कर दीजिए। कल का सेशन में आपको उनको क्या खाने में ख्याल रखना है, कौन कौन सा फूड देना है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी, क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है वो उसमें डॉक्टर ही बेस्ट आपको रिस्पॉन्स देंगे। और दूसरी चीज, जैसे ही हमारा कल का सेशन खत्म होता है, आपको क्या करना है, आपने आपको जिसने भी लिंक भेजा है, आपके कोच रहेंगे, उनका आपको कांटेक्ट करना है और वो पूरा आपको डिजाइन करके देंगे। टीआरएम फैमिली में आप कैसे आ सकते हो, हमारी मदद कैसे ले सकते हो, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। ठीक है अशोक जी, तो डोंट टेक अ टेंशन, आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इत्मीनान रखिए, धीरज रखिए। और यहाँ पर इतने सारे लोगों को अच्छा बेनिफिट मिला हुआ है, बेनिफिट हुआ है, तो डेफिनेटली आपका भी बेनिफिट अच्छा होगा, फायदा अच्छा होगा। अभी की करंट सिचुएशन डॉक्टर ही संभाल सकते हैं। जैसे नॉर्मल अभी आ रहा है तो डेफिनेटली डॉक्टर जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से कीजिए। फिर खाने में आपको क्या क्या ख्याल रखना है वो हमारी टीम, हमारे फैमिली मेंबर्स जो है वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है अशोक जी, डोंट टेक अ टेंशन। थैंक यू सर, और कल थैंक का यू सर। सेशन खास करके अटेंड करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पर चैट बॉक्स में किसी ने लिखा था कि उनको लाइव रिकॉर्डिंग सेशन चाहिए, तो डॉक्टर हमारे आदित्य आदित्य जी है, तो डेफिनेटली आदित्य जी, ये इसका लाइव रिकॉर्डिंग सेशन यूट्यूब पर चल रहा है, तो आप अपने कोच से बातचीत करेंगे तो आपको वहां पर भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप उनसे लिंक ले लेना। और आपने जिसको भी इनवाइट किया है, शायद वो आज यहाँ पर अटेंड नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली आप उनको भी वहां पर उनको दे सकते हो। ठीक है, और हमारी टीआरएम फैमिली में आप यहाँ पर आए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा। तो कल हम डेफिनेटली बहुत सारे लोग रहेंगे हमारे साथ और कल हम बातचीत भी करेंगे। यहाँ पर रोहित जी है, अगर ओके, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हम यही कंक्लूड करते हैं। कल डेफिनेटली फिर से मिलेंगे और आगे जानेंगे। और मेक श्योर कल हमारा टीआरएम फैमिली जो है एक सरप्राइज बोनस है, और कल का सेशन बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है और आपको अटेंड करना